Yes, take out illustration number 39. Illustration number 39, page number illustration number 39, page number 6.62. Page number 6.62. Following is the balance sheet of X Limited. Addition information. Gain on sale of land is 30,000. Depreciation on plant and machinery was provided at 10% on the last year balance. Interest paid on mortgage loan amounting to 24,300 and provision for income tax made during the year is 32,000. Now you are required to prepare cash flow statement. Cash flow statement. तो ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट. particular amount, यहाँ लिखेंगे ए कैश फ्लो, फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर अपन यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर यहाँ लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, Spread with adjustment है regarding the plant and machinery and provision for tax. उसका वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे अपन. देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं. सबसे पहले शेयर कैपिटल है. इन बिगनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल इज 4,50,000 and in end of the year it is 4,50,000. So during the year there is no change in share capital. Next is reserve and surplus.
So in note number 1, it is given that reserve and surplus include retained earning. So in beginning of the year, retained earning is 56. In beginning of the year, retained earning is 3,56,000, and in end of the year it is 4,78,000. So it is treated as net profit during the year. It is treated as net profit during the year. So net profit during the year is 1,22,000. Net profit during the year is 1,22,000. Next is your long-term borrowings. Long-term borrowings include mortgage loan. In note number 2, mortgage long-term borrowings include mortgage loan. So in beginning of the year, mortgage loan is 0, and in end of the year it is 1,70,000. It means during the year we take we take a loan of 1,70,000. We take a loan of 1,70,000, and loan taken is a financing activity. Loan taken is a financing activity. So यहाँ लिखेंगे mortgage loan taken कितना 1,70,000. Mortgage loan taken 1,70,000. Right. Now trade payable. In beginning of the year, trade payable is 2,03,000, and in end of the year it is 1,09,000. So trade payable is a current liability. तो current liability यहाँ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज में डिक्रीज इन ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया. इट मीन्स कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया. कितना? 94,000. Next is short-term provision. Short-term provision include provision for tax, and in addition information there is a adjustment regarding provision for tax. तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे. provision for tax account. Provision for tax is a liability, और liabilities के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट. तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 35,000. तो यहाँ लिखेंगे अपन टू बैलेंस कैरेड डाउन. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज 35,000. Now, in addition information, point number 4. Provision for tax made during the year is 32,000. So journal entry for provision for tax made is, provision बनाने की journal entry क्या होगी? Statement of profit and loss account debit. To provision for tax. Statement of profit and loss account debit to provision for tax. कितना प्रोविजन बनाना है? 32,000. सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारा? 32,000. सो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. बैलेंसिंग फिगर. सो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर इज
37,000. 40 plus 32 minus 35. So balancing figure is 37,000. It is tax paid during the year. So ये जो प्रोविजन अपन ने बनाया 32,000 का, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. सो इसको अपन ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. और ये जो 37,000 का टैक्स अपन ने पे करा है, ये जो 37,000 का टैक्स अपन ने पे करा है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स. जो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने प्रोविजन बनाया है उसको यहाँ पे अपन ऐड करेंगे. प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 32,000 एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 37,000. तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 37,000. जो अपन ने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 37,000. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग. इन पॉइंट नंबर 4, इन नोट नंबर 4, tangible assets include land and building and plant and machinery. So land and building in beginning of the year, land and building is 2,50,000 and in end of the year it is 1,40,000, and there is adjustment regarding the land. In point number 1, addition information point number 1, gain on sale of land is 30,000. अब इस पर एडजस्टमेंट है तो अपन इसका भी क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे. तो मतलब उसका भी क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे. तो अपन बनाएंगे क्या, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. अच्छा लैंड है केवल, तो अपन प्रिपेयर करेंगे लैंड अकाउंट. केवल लैंड ही है, बिल्डिंग नहीं है, तो बनाएंगे लैंड अकाउंट. सो लैंड इज असेट, और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं. सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लैंड इज 2,50,000. तो असेट है, असेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट. तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1,40,000. रीड एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इज 30,000. गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इज 30,000. So this profit will be transferred to profit and loss account. So journal entry will be land account debit to statement of profit and loss account, 30,000. तो लैंड अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है, 30,000. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग द लैंड. देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द लैंड. सो बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 प्लस 30, 2,80,000 माइनस 1,40,000. तो बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर ये आपका कहलाएगा सेल ऑफ लैंड. बैलेंसिंग फिगर ये आपका क्या कहलाएगा, सेल ऑफ लैंड 1,40,000. तो ये जो सेल ऑफ लैंड है 1,40,000, ये जो सेल ऑफ लैंड है 1,40,000, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी.
तो इसको तो अपन शो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है 30,000, दिस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, लेस कर देंगे इस 30,000 को। एंड सेल ऑफ लैंड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको अपन कहाँ शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उसको एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एंड सेल ऑफ लैंड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको अपन यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ लैंड कितना आया था, 1,40,000। इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। नेक्स्ट टेंजेबल एसेट इज प्लांट एंड मशीनरी, and there is adjustment regarding the plant and machinery. In additional information, point number 2, depreciation on plant and machinery was provided 10% on last year balance. तो एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका अपन अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,80,000। कैरेट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड at 10% on last year balance. तो depreciation on plant and machinery, so last year balance is 1,50,000, and rate of depreciation is 10%, so 10% of 1,50,000 is 15,000। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, depreciation account debit to plant and machinery, कितना है 15,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 32,000। तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो इधर यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आपका कहलाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आएगा आपका कितना 45,000। सो ये जो डेप्रिसिएशन है 32,000 का, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म इसको ऐड कर देंगे। एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 15,000, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी,
इससे कैश का आउटफ्लो होगा, कितना है 45,000, तो इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनटेंजिबल असेट्स। सो इनटेंजिबल असेट्स इंक्लूड गुडविल, intangible assets include goodwill. So in beginning of the year goodwill is 50,000, in beginning of the year goodwill is 50,000, and in end of the year it is 60,000, and in end of the year it is 60,000. It means goodwill आपकी इंक्रीज हो रही है, तो goodwill इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 की गुडविल क्या करी है, परचेज करी है। 10,000 की गुडविल अपन ने क्या करी है, परचेज करी है। So goodwill is an intangible asset, and intangible is our fixed assets. So purchase of fixed asset is a investing activity. तो इसको investing activity में लिखेंगे purchase of goodwill, purchase of goodwill, कितनी गुडविल परचेज करी है, 10,000 की, तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट किस में इंक्लूड होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। किसके अंदर इंक्लूड होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो सबसे पहले आपका दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 78,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 70,000। देन इन्वेंट्री, in beginning of the year inventory is 2,15,000, and in end of the year it is 1,70,000. so inventory is a current asset, so इसको वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। करंट एसेट आपका करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया 45,000। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, 2,10,000 से 4,55,000 के हो गए। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट इंक्रीज होगा, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब इसमें और अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 2,45,000। कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 2,45,000। फिर कैश एंड बैंक दे रखा है तो कैश एंड बैंक इज इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। So opening balance is 96,000 and closing balance is 1,67,000. 1,67,000. So opening balance of cash and cash equivalent is 1,74,000 and closing balance of cash and cash equivalent is 2,37,000. Now इन एडिशन इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन इज 24,300। सो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट अपन ने पे करा है, 24,300, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। And interest paid is a non-operating expense. Interest paid is a non-operating expense and non-operating expenses added in adjustment for. तो यहाँ लिखेंगे interest paid 24,300, 24,300। Now सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अब इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले नेट प्रॉफिट में ये सब एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,63,300, 1,63,300। इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा आपका नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर,
नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो 1,63,300 में ये सब एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नेट कितना, नेगेटिव आ रहा है आपका 1,30,700। ये भी नेगेटिव है और टैक्स पेड ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेगेटिव आएंगे आपके 1,67,700। ये आएगा नेट कैश, नेट कैश यूज इन, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको एडलेस करेंगे तो ये आएगा आपका 85,000, 85,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एडलेस करेंगे ये आएगा आपका 1,45,700। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसको एडलेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या था 1,67,700 नेगेटिव, उसमें ऐड करेंगे 85,000, ऐड करेंगे 1,45,700, तो ये नेट आएगा 63,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 1,74,000, 1,74,000। तो इसको इसमें ऐड करेंगे आएगा 2,37,000। तो ये आपका कहलाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 2,37,000। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? सर एक बार वो बता दो टैक्स वाले का एडजस्टमेंट। Provision for tax. In addition information in point number 4, it is given that provision for tax made during the year is 32,000. Provision for tax made during the year is 32,000. इसका मतलब हमने during the year 32,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है टैक्स का, राइट? अब बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड था। इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर था कितना 40 एंड इन एंड ऑफ द ईयर कितना था 35। तो क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट था तो अपन ने इसका अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यहाँ अपन ने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 40,000 एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। अब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 32,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ स्टेट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 32,000। तो 40 प्लस 32 कितना होता है 72,
72 माइनस 35, तो यहाँ पे ये आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 37,000, तो ये आ गया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 37,000। ये कहलाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका क्या कहलाएगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो 32,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इस 32,000 को हम ऐड कर देंगे, और ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स पे करा है, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको तो यहाँ पे ऐड कर दिया अपन ने, और जो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने टैक्स पे करा है वो लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हो गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, any doubt in this question? Any doubt? Okay, take out illustration number 40. Take out illustration number 40. Illustration number 40. Following is the balance sheet of Surya Roshni Limited on 31st March 2018 and 17. Additional information. Read additional information. Interim dividend paid during the year is 36,000. Non-current investment costing rupees 10,000. Non-current investment costing rupees 10,000 was sold at a profit of 40%. Tangible fixed asset costing rupees 20,000. Accumulated depreciation 8,000 was sold for 17, and additional debentures were amounting to 50,000 were issued on 1st August 2017. Interest on debentures has been paid regularly. Now you are required to prepare cash flow statement. तो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है और टेंजेबल असेट्स पे इन्वेस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट में अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे अपन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर यहाँ लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर लिखेंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस, स्टार्टिंग से करते हैं। नाउ सबसे पहले शेयर कैपिटल है। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल इज 4 lakh and in end of the year it is 4,75,000 and in end of the year it is 4,75,000. It means during the year हमने 75,000 रुपीज़ के क्या करे, शेयर्स इशू कर दिए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अपन इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन ने, 75,000 के। कितने शेयर इशू कर रहे हैं अपन ने, 75,000 के। सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 75,000। रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन पॉइंट नंबर 1 reserve and surplus includes securities premium. So in beginning of the year security premium is nil and in end of the year it is 60,000. It means ये during the year जो 60,000 के शेयर्स हैं ये अपन ने काय पे इशू करें, प्रीमियम पे। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन issue of shares, premium on issue of shares, how much, 60,000. Premium on issue of share 60,000. Then balance of profit and loss account. Balance on profit and loss account, in previous year it is 30 and in current year it is 56,000. So net profit during the year कैसे निकालेंगे, 56,000 माइनस का 30,000, 56,000 माइनस का 30,000। सो 56,000 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 30। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 86,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 86,000। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 86,000। नेक्स्ट इज long term borrowings. So long term borrowings includes 15% debenture. Long term borrowings includes 15% debenture. In beginning of the year debenture is 2 lakh and in end of the year it is 2,50,000 and in end of the year it is 2,50,000. It means during the year हमने 50,000 रुपीज़ के क्या करें, डिबेंचर्स इशू करें। सो इशू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू करें, 50,000। अब इस पे एक एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर एडिशन इन्फॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 4 एडिशनल डिबेंचर अमाउंटिंग टू 50,000 इशूड ऑन 1 अगस्त।
कि जो अपन ने 50,000 के डिबेंचर इशू करे हैं, ये डिबेंचर हमने कब इशू करें? 1 अगस्त को। तो अब यहाँ पे जो अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास डिबेंचर्स थे कितने के? इन बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास डिबेंचर्स थे 2 लाख के, और रेट कितना है? 15%। तो 15% ऑफ 2 लाख इज 30,000। 15% ऑफ 2 लाख इज 30,000। फिर अपन ने 50,000 के डिबेंचर्स और इशू करे, फिर अपन ने 50,000 के डिबेंचर इशू करे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। और ये डिबेंचर्स अपन ने कब इशू करे? 1 अगस्त को। तो इस पर डिबेंचर लगाएंगे, इंटरेस्ट लगेगा कब से कब तक का? 1 अगस्त से 31 मार्च। तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स। ये जो एडिशन डिबेंचर इशू हुए हैं 50,000 के, कब इशू हुए? 1 अगस्त को। तो इस पर डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा? सॉरी, इंटरेस्ट हम इस पर कब से कब तक का पे करेंगे? 1 अगस्त से 31 मार्च। तो 1 अगस्त से 31 मार्च, 1 अगस्त से 31 मार्च। तो ये इंटरेस्ट होता है आपका कितना? 15%। और कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का। तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट अपन निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 5,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो कितना पे करेंगे? 35,000। क्लियर हो गया? बिगनिंग ऑफ द ईयर में डिबेंचर्स कितने थे? 2 लाख। तो ये तो पूरे साल भर रहे, तो इस 2 लाख पे तो 15% पूरे साल भर का इंटरेस्ट दे दिया, 30,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 के डिबेंचर इशू करे, लेकिन ये डिबेंचर्स अपन ने कब इशू करे थे? 1 अगस्त को। तो इस पे इंटरेस्ट कब से कब का देंगे? 1 अगस्त से 31 मार्च। तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितने होते हैं? 8 मंथ्स होते हैं। तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होता है? 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 35,000। तो इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड हाउ मच? 35,000। and it is non-operating expense. It is non-operating expense. तो एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 35,000। इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल। In beginning of the year, trade payable is 50,000, and in end of the year it is 1,10,000. So working capital change में यहाँ लिखेंगे increase in trade payable. Trade payable is a current liability, और जब current liability आपकी increase होती है तो working capital decrease होती है, तो इससे आपके कैश का क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा कितना? 60,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? ट्रेड पेबल हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इंक्लूड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10,000, और इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 14,000। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 4,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बनाया अपन ने 4,000 का, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 4,000। फिर है प्रोविजन फॉर रिपेयर। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं था, एंड ऑफ द ईयर में 2,000 का है। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर अपन ने रिपेयर पे प्रोविजन बनाया कितने का? 2,000 रुपीज का। तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर 2,000। तो इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको?
अब असेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में पॉइंट नोट नंबर 4, फिक्स एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन है, तो अपन यहाँ पे इस पे एडजस्टमेंट भी दे रखा है। तो एक तो अपन फिक्स एसेट अकाउंट बनाएंगे और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स एसेट आपका एसेट है और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है आपका कितना, 2 लाख, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 2 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख, तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना है, 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 5 लाख। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है कितना, 30,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 30,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। अब पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं फिक्स एसेट कॉस्टिंग रुपीज, फिक्स एसेट जिसकी कॉस्ट है कितनी, फिक्स एसेट कॉस्टिंग रुपीज 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 8,000। तो यानी इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू रहेगी कितनी, 12,000। तो इस 12,000 रुपीज के एसेट को अपन ने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया अपन ने इसको, 17,000 में सेल कर दिया। तो फिक्स एसेट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 12,000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 17,000। तो यानी यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। 5,000 रुपीज का क्या हो गया आपका, प्रॉफिट ऑन सेल, कितना, 5,000। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और हम अपने एसेट को सेल करते हैं, तो जो एसेट आपने सेल करा है उस पर अब तक जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालकर हम ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो सब सारा डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेट हो रहा है प्रोविजन अकाउंट में। तो वो डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट कितना लग चुका है, 8,000 का। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, फिक्स एसेट से। तो यहां लिखेंगे टू फिक्स एसेट कितना, 8,000, और फिक्स एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया है, फिक्स एसेट अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। अब अपन ने इसको सेल करा, कितने में सेल करा, 17,000 में सेल करा। तो फिक्स एसेट को सेल करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। कितने में सेल करा अपन ने इसको, 17,000। तो फिक्स एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या है ये है सेल ऑफ
फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट कितना है 17,000। और ऐसा करने से आपको 5,000 रुपीज का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो 5,000 रुपीज का प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ था, 5,000 का। तो यहां लिखेंगे अपन 5,000। तो फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट कराए किससे, स्टेटमेंट से। तो यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। ठीक है, अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। तो आपका ये जो फिक्स एसेट अकाउंट है, इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट का कम आ रहा है। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है 3,20,000। तो ये जो फिक्स एसेट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, तो ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये क्या कहलाएगा आपका, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 3,20,000। और ये जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसका डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 26,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाला अपन ने 26,000 का, ये जो 26,000 का बैलेंसिंग फिगर निकाला, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर ये क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। यानी जो रिमेनिंग फिक्स एसेट्स हैं उस पे अपन ने करंट ईयर में 26,000 रुपीज का क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन लगाया है। अब इसका कैश फ्लो में क्या एडजस्टमेंट होगा, सबसे पहले ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 3,20,000। दिस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना फिक्स्ड एसेट परचेज किया था, 3,20,000। तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेल ऑफ अपन ने फिक्स्ड एसेट सेल करा 17,000 में, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने में सेल करा है अपन ने इसको, हमने इसको सेल करा है 17,000 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना, 17,000। फिर ये जो 26,000 है ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ऑन रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, इट इज आवर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट। तो ये जो 26,000 का डेप्रिसिएशन है, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 26,000, राइट। तो ये एडजस्टमेंट था किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पे। नाउ नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इस पे भी एडजस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 2, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 was sold at a profit of 40%। तब अपन क्या बनाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे असेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। और असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 45। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है आपका 45,000। अब एडजस्टमेंट का देखो पॉइंट नंबर 2, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 10,000 sold at a profit of 40%, so 40% of 10,000 is 4,000। यानी हमने इसको कितने में सेल करा, हमने इसको सेल करा है कितने में, हमने इसको सेल करा है 14,000 में। कितने में सेल करा है 14,000 में। तो सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 14,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 14,000, यहाँ लिखेंगे अपन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14,000। और ऐसा करने से अपन को 4,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पीएनएल में। तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 4,000 रुपीज का। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करा है किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 4,000 रुपीज का। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 15,000। तो ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आपका कहलाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर कितना 15,000। तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,000 का, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपीज का, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का प्रॉफिट हुआ था इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, 4,000 रुपीज का। इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। दिस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच, अपन ने इन्वेस्टमेंट परचेज करा 15,000 का, तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा कितना 15,000। नेक्स्ट इज दिस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपन ने इन्वेस्टमेंट सेल करा कितने का 14,000 रुपीज का। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कितने में सेल करा 14,000 रुपीज में अपन ने इन्वेस्टमेंट को क्या करा, कितने में 14,000 रुपीज में अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा, सेल करा। यस सर, अभी मेरे फादर स्कूल गए हुए हैं शीट लेने,
तो वहाँ पे रिसेप्शन पे बोल रहे हैं कि सिर्फ 9th और 11th के आंसर शीट्स अवेलेबल है। अभी मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या दे रखा है? करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या है आपके? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या दे रखा है आपको? करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज 50,000 and closing balance of current investment is 30,000. Closing balance of current investment is 30,000. Right? Inventory. In beginning of the year, inventory is 1,50,000 and in end of the year it is 2,00,000. तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में लिखेंगे इन्वेंट्री का इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा 50,000। ट्रेड रिसेबल 1,76,000 से 756 के रह गए, सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल। करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी, तो इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा कितना? 1,20,000। नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक इज 44,000 and closing balance is 1,84,000. So opening balance of cash and cash equivalent is 94,000 and closing balance of cash and cash equivalent is 2,14,000. Is 2,14,000. Right? Now, additional information. Point number 1. Interim dividend paid during the year is 36,000. So interim dividend paid during the year is a फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसको यहां पे लिखेंगे अपन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस कर देंगे। एंड इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड करेंगे। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इसको एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना है? 36,000। इंटरिम डिविडेंड है कितना? 36,000। पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। तो ये एडलेस करने के बाद अब एडजस्टमेंट्स सब कैलकुलेशंस करते हैं। ये एडलेस करने के बाद ये कितना आ रहा है आपका? 1,80,000। 1,80,000, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका FFO। ये आपका क्या कहलाएगा? FFO। फिर इसमें इस वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ रहा है आपका 3,10,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो from operating, net cash flow from operating activity, net cash flow from operating activity 3,10,000। उसके बाद ये एडलेस करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, 3,04,000 नेगेटिव आ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका नेट कैश यूज इन investing activity, net cash used in
investing activity. Net cash used in investing activity. फिर इसको एटलेस करेंगे तो ये आएगा 1,14,000. तो ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब इसको अपन नेट करेंगे. ये कितना रहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? 3,10,000. सो 3,10,000 माइनस 3,04,000 माइनस 1,14,000. तो ये आ रहा है 1,20,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000. फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 94,000. सो 1,20,000 प्लस 94 यह आएगा आपका 2,14,000. यह आपका कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,14,000. क्लियर है क्वेश्चन?